Good morning, students. Today we are learning computation of CGST, SGST and IGST, and how SGST and CGST will be adjusted against IGST, or if IGST is there, how will it be adjusted against CGST and SGST. What should be the input tax credit of mediator, and what are the tax liability of each taxpayer in the chain. And we will also learn from this question that what are the revenues earned by respective states government which are involved and the central government. So this is the question in front of us. There is Mr. C is there. He is in Tamil Nadu. He supply goods to Mr. M, who is in Maharashtra, and the value of goods is not given. What is given? The MRP is given. 23,600 rupees is MRP of the goods inclusive GST. So first thing I must tell you that MRP here always equals to value of supply plus GST. MRP is equals to value of supply plus GST. So here in this case 23,600 is MRP. So to find out the tax liability, we need to calculate the value of supply, which can be calculated here as GST rate is given and MRP is given. So these two things are given. We can easily find out value of supply. Fine. So we will do it later. First, understand the question. Mr. C is supplying goods to Mr. M for the MRP 23,600 inclusive of GST, and he is in Tamil Nadu, he is in Maharashtra. Now, second transaction is Mr. M supplies these goods to Mr. P for rupees 35,000. For rupees 35,000, not for rupees 35,000, sorry. The value of these goods is rupees 35,000. So here value is given, you have to add GST to it, then you will get the MRP. In this transaction MRP is given, value not given. Here value given, MRP not given. Same goods he is selling, same goods after making some value addition for rupees 35,000 or adding his profit, whatever the case. We can add here in second. Mr. M can add here either profit or the value. So he is selling the same goods, same quantity to Mr. P for of value rupees 35,000. Mr. P is in Maharashtra. Now what you have to find out? You have to find out total price charged by Mr. M. So here Mr. M sale कर रहे हैं Mr. P को. What is the price charged? Second thing, you have to find out input tax credit of Mr. M. Third, revenue to central and state government. These things we have to find out. So let's start with this. How we solve this question? Let's see. So let's see how we will solve this. First of all, we need to find out the value of this goods. MRP, we are putting the values in front of these names in equation. MRP is 23,600
23,600. $23,600. This is the MRP. This is the MRP equals to, let's suppose value is B. Let's suppose value is B. GST rate is given 18%. GST rate is given 18%. So how will we calculate the GST? 18% of value. So 18% of value. In this equation, we have to find out the value of B from this equation. So it's, if we take the LCM, 100B plus 18B equals to 23,600. Solving this question, this equation, we get B equals to 23,600 upon 118 into 100, which comes out to be 20,000. Which comes out to be 20,000. So value of goods is 20,000 in this case. Now one thing I must tell you, we should differentiate between MRP and value of goods. Value of goods or services. Value of supply of goods or services. Either value of goods in some cases, value of services in some cases. So we have to, all these questions of GST we can solve with the help of value. So if MRP is given, first convert it in the value of supply. So all the questions will be done with the help of value of supply. We just need the value of supply to solve all the questions. Okay. So we have found the value of supply first, which is 20,000. Now we can solve the question. So in all the transactions, in all the supplies, the chain of transaction, we need to find out the value first. So we have find out value, which is 20,000. So I am rubbing it because we don't use MRP, we use value. वैल्यू हो गया आपका 20,000 रुपीज. तो फर्स्ट थिंग वी डिड, वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है, वैल्यू से आगे हम वर्क करेंगे. अब मैंने दो चीजें आपको पहले भी बताई थी जो मेरी पहले की वीडियोस है उसमें, कि जब कभी हम सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, सेम स्टेट, जैसे महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, दोनों ट्रेडर्स महाराष्ट्र में ही हो अगर, या दोनों ट्रेडर्स तमिलनाडु में हो, दोनों ट्रेडर्स सेम स्टेट में हो, तो हमारे दो टैक्स लगते हैं, CGST और SGST. सेंट्रल GST और स्टेट GST दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर GST रेट 18% है तो ये 9% पर लगेगा, ये भी 9% पर लगेगा. अगर GST रेट 12% होता तो दोनों 6% पर लगते. अगर सेम स्टेट नहीं है, यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, स्टेट सेम नहीं है, तो SGST CGST नहीं लगता. फिर क्या लगता है? फिर लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कंप्लीट फुल रेट पर होता है 18% पर, ये हाफ नहीं होगा. तो हमारे फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में तो क्योंकि क्रॉस बॉर्डर है, तमिलनाडु से गुड्स जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे लगेगा IGST, यहाँ लगेगा IGST.
और जब गुड्स महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र जा रहे हैं मिस्टर एम टू मिस्टर पी, सेम स्टेट है, तो यहाँ पर लगेगा CGST एंड SGST कोड। यहाँ सिर्फ IGST लगेगा, सिर्फ IGST, सिर्फ IGST। ये मैं अब कर रही हूँ, ये मैंने आपको बता दिया सेम स्टेट या क्रॉस बॉर्डर के केस में क्या होता है। अब इनका निकालते हैं टैक्स। मैंने बोला IGST पूरा 18% पर ही लगेगा फुल रेट पर, तो टैक्स लगता किस पर है? टैक्स लगता है वैल्यू पर, इसलिए हम MRP को हमने वैल्यू में कन्वर्ट किया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर टैक्स लगता है। तो IGST लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? 18% ऑफ ₹20,000 which comes out to be 3,600 rupees। ये हमारा IGST हो गया। CGST और SGST कैसे लगेगा? इसकी वैल्यू 35,000 है, इसकी वैल्यू 20,000 थी तो 20,000 का कैलकुलेट हुआ, इसकी वैल्यू 35,000 है तो 35,000 का कैलकुलेट होगा। CGST इक्वल्स टू CGST आएगा 9% of 35,000 rupees which comes out to be 9% आएगा आपका, 9%, लेट मी कैलकुलेट, एंड 9% ये SGST भी ऐसे आएगा 9% ऑफ रुपीज 35,000। CGST और SGST अगर एक ट्रांजैक्शन में लग रहे हैं वो तो दोनों हमेशा बराबर ही आते हैं, क्योंकि दोनों आधे आधे होते हैं, वैल्यू सेम होती है। ये आ गया 3150 रुपीज, 3150 रुपीज। टोटल टैक्स आया रुपीज 6,300। तो अब ये जो गुड्स मिस्टर एम मिस्टर पी को दे रहे हैं, इसकी MRP क्या हो जाएगी? आपको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट MRP, सबसे पहले तो पूछा था द वैल्यू चार्ज बाय मिस्टर एम फ्रॉम मिस्टर पी। MRP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस GST। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज दिस 35,000 और GST आपका 6,300, तो MRP आपकी आ गई ₹41,300, ₹41,300 आपकी आ गई MRP। तो जो MRP P ने M को पे की वो ये हो गई, वो वैल्यू और प्लस GST दोनों पे करेगा। ये पे कर रहा है, इसने क्या, ये प्राइस सी कितनी चार्ज कर रहा है मिस्टर सी एम से? 23,600 जो क्वेश्चन में गिवन था, उससे हमने वैल्यू निकाली थी। यहाँ वैल्यू गिवन है, यहाँ से MRP निकाली टैक्स जोड़कर। तो मिस्टर एम इसको टैक्स दे रहे हैं सी को, मिस्टर एम इतना टैक्स दे रहे हैं इसको, और मिस्टर पी मिस्टर एम को कितना टैक्स दे रहे हैं? ये दे रहे हैं इतना टैक्स। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? मिस्टर पी ने मिस्टर एम को टैक्स पे किया 6,300 और मिस्टर एम ने मिस्टर सी को पे किया 3,600। अब ये पैसा गवर्नमेंट को कैसे जाता है, इसकी वर्किंग थोड़ा आपको क्लियर करती हूँ, इसकी वर्किंग पे क्लियरिटी देती हूँ थोड़ी आपको। जो मिस्टर एम ने पैसा दिया मिस्टर सी को,
मिस्टर एम ने जो मिस्टर सी को पैसा दिया 3600, यहाँ से टैक्स गया उधर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, आईजीएसटी लगा सिर्फ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मिस्टर सी पे करेंगे आईजीएसटी 3600 टू गवर्नमेंट। जैसा कि पहले भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको बताया है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है पूरा, आईजीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया 3600। टैक्स इस तरह से ही जाता है जीएसटी। आप कुछ खरीद रहे हैं, मिस्टर एम कुछ खरीद रहे हैं सी से, मिस्टर एम ने टैक्स और वैल्यू यानी मिलाकर एमआरपी इनको दे दिया, अब ये टैक्स करेंगे पे, ये नहीं करेगा, इसने इसको दे दिया और ये करेगा गवर्नमेंट को पे। इस वाले ट्रांजैक्शन की बात खत्म। कम टू सेकंड ट्रांजैक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एम टू मिस्टर पी, सेकंड ट्रांजैक्शन। इसमें मिस्टर पी ने टैक्स पे किया मिस्टर एम को, ये रहा, ये आपका टैक्स है। मिस्टर पी से मिस्टर एम ने टैक्स ले लिया और मिस्टर एम ने मिस्टर पी को गुड्स दे दिए। अब मिस्टर एम के पास जो टैक्स आ गया, मिस्टर एम क्या करेंगे, ये टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट को टैक्स देंगे 3150 और 3150। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये तो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, स्टेट महाराष्ट्र है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स चला जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चला गया टैक्स। एसजीएसटी गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट जिसमें भी स्टेट के अंदर ट्रेड हो रहा है, एंड सीजीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना गया और स्टेट गवर्नमेंट को इतना गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा रब करूंगी, आगे आपको मैकेनिज्म बताऊंगी। पहला वाला आंसर आपको मिल गया, दूसरा आंसर भी आपको मिल गया कि इनका टैक्स कितना बन रहा है। अब मैं आती हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो टैक्स आप पहले दे चुके हो पिछले ट्रांजैक्शन में, वो वापस आना, रिफंड होना गवर्नमेंट से, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मिस्टर एम ने मिस्टर पी से टैक्स कलेक्ट किया और इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया बाद में। पहले कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी, सी टू एम, तमिल मिस्टर सी से जब मिस्टर एम ने गुड्स परचेज किए तो मिस्टर एम ने उसी वक्त मिस्टर सी को टैक्स दे दिया था 3600, जो इन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये अपनी पॉकेट से 3600 पे कर चुके हैं, बट ये एंड यूजर नहीं है, इन्होंने आगे सेल कर दिया प्रोडक्ट। क्योंकि इन्होंने आगे सेल कर दिया और इनसे टैक्स लेके फिर गवर्नमेंट को पे किया है, तो टैक्स दो बार चला गया, 3600 भी चला गया और 6300 भी चला गया। 3600 पहले पे कर चुके हैं सी को और 6300 इन्होंने इनसे रिसीव करके और यहाँ पर पे कर दिया। तो ये पैसा जो है 3600 जो मिस्टर एम पहले ही दे चुके हैं, मिस्टर एम को साल के एंड में गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। तो मिस्टर एम के लिए ये पैसा रिफंड हो जाएगा और ये कहलाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमेशा मीडिएटर्स को मिलता है, क्योंकि जो फर्स्ट सप्लायर है वो तो टैक्स रिसीव करके पे करता है, उसकी पॉकेट से कुछ नहीं गया, एंड यूजर की पॉकेट से ही सारा टैक्स जाता है। जो मीडिएटर है वो क्या करता है, पहले वाले ट्रांजैक्शन में टैक्स दे देता है और दूसरे ट्रांजैक्शन से टैक्स लेके फिर गवर्नमेंट को दे देता है। तो क्या होता है, जो पहले वाले ट्रांजैक्शन का पैसा था वो उसको बाद में रिफंड हो जाता है, क्योंकि दो बार टैक्स चला गया, तो ये पैसा वापस आ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गई है। अब मैं बताती हूँ मिस्टर एम को इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे वापस आएगा और नेट टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट्स को डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कैसे जाएगा। नेक्स्ट क्लैरिटी इस पर देती हूँ।
तो नेक्स्ट क्लैरिटी इस पर आएगी आपकी। देखिए एक था आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स टू गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी टू मिस्टर एम। एक ये था ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शन थी आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एम टू मिस्टर पी। इस वाली सप्लाई में टैक्स 3600 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिस्टर सी ने दे दिया था। मिस्टर एम से लेकर 3600 का टैक्स इस वाली ट्रांजैक्शन में मिस्टर एम से मिस्टर सी ने रिसीव किया और मिस्टर सी ने गवर्नमेंट को दे दिया। डन। दूसरी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एम टू मिस्टर पी। इसमें क्या हुआ, इसमें मिस्टर एम ने मिस्टर पी से रिसीव किया 3150 रुपीज एंड 3150 रुपीज, जो इन्होंने रिस्पेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, महाराष्ट्र वाली। अब पैसा रिफंड होगा, मैंने आपको बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखते हुए 3600 रुपीज, क्योंकि मिस्टर एम पहले दे चुके हैं, मिस्टर एम की पॉकेट से चला गया है और मिस्टर एम ने आगे ट्रांजैक्शन किया तो 6300 उन्हें मिल गया है, वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये पैसा इन्हें रिफंड होगा। ये किस तरह से रिफंड होगा, रिफंड करते हैं यहाँ से 3600 रुपीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना पूरा पैसा रिफंड कर दिया 3150, मिस्टर एम को पूरा रिफंड कर दिया। अब 450 रुपए और बचे, 3600 इनको रिफंड करना है, 3150 कर दिया, 450 और रिफंड होगा। ये 450 जो रुपया बचा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिफंड करेगी। फिर से देख लीजिए, टोटल अमाउंट रिफंडेबल है 3600, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3150 आया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3150 तो कर दिया रिफंड, बचा हुआ पैसा 450, ये बचा, ये पैसा बचा, रिमेनिंग अमाउंट, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिफंड करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 3150 में से रिफंड किया, 3150 में से इसको रिफंड कर दिया, इसको रिफंड कर दिया। तो कितना रिफंड किया, रिफंड करने के बाद जो बचा वो 2700 रुपए बचा, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा 3150 रिफंड कर दिया, 3600 रुपए रिफंड होना है, 3150 रिफंड हो गया, 450 और रिफंड होगा अभी, 450 इसमें से रिफंड हो गया, बचा 2700 रुपए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रहा, 2700 रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गया, रिवेन्यू टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और ये वाली रिवेन्यू पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हो चुकी है, इतना पैसा यहाँ से रिफंड हुआ है, ये तो गवर्नमेंट को चला ही गया, ये पैसा रिफंड नहीं हुआ है, इतना पैसा इस अमाउंट के बराबर का पैसा यहाँ से रिफंड हुआ है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। तो रिवेन्यू कितना हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू हो गया 3600 रुपीज और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिवेन्यू हो गया 2700 रुपीज। टोटल टैक्स बन गया 6300 रुपीज, 6300 टोटल टैक्स बन गया। मैंने आपको एक बार पहले भी क्वेश्चंस कराए, उसमें बताया था कि आप एंड यूजर का टैक्स कैलकुलेट करना, एंड यूजर के टैक्स के बराबर अगर आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट हटाने के बाद जो आंसर है वो अगर 6300 उसी अमाउंट के बराबर आ जाता है जो टैक्स एंड यूजर दे रहा है, तो आपका क्वेश्चन ठीक है।
अब आपका टैली हो गया आंसर 6300। उसने एक्चुअल में यही अमाउंट दिया था। मिस्टर पी जो एंड यूजर था उसने इतना ही टैक्स दिया था, उसने इतना ही टैक्स दिया था, तो सारी गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू जोड़कर इसके बराबर आ गया, तो आपका आंसर ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।